everyone. My name is Preeti Mishra and I am from Bhiwadi, Rajasthan. I had done my post-graduation in biotechnology from Kurukshetra University, Kurukshetra, and also having teaching experience in Teaching Institute. My topic is Tools of Recombinant Biotechnology. Okay. Here we are going to discuss all the tools like restriction enzyme, DNA ligase, vector, and most important, host. We use also technique like PCR and gel electrophoresis also using here. Now, before we start the tool of recombinant biotechnology, let me discuss what is biotechnology. Biotechnology is a term which is given by Carl Iracky. The term biotechnology is derived from two words, bio and technology, where we use technology which deal with microorganism, plant cell, animal cell and their enzyme to produce what? To produce product and service which is useful to human. In old biotechnology, we are making curd, wine, and many other things like our fermented foods. All are done with the help of microorganism. But in modern biotechnology, what we are using? We are using the term genetic engineering. Genetic engineering में हम क्या देखते हैं? कि for example, this is the plant. And here we want to insert this desired segment of gene inside the host or the plant. अगर मुझे ये जो segment है, ये जो desired मेरा DNA है, if I want to transfer the desired DNA into the host of plant, it can be done with help of all the tools of recombinant biotechnology which we are using it. For example, आपको एक project assigned हुआ. आपको कोई भी project करने के लिए what it required mostly? Scissors, राइट तो हमें क्या करना होता है, उसे कट कॉपी पेस्ट करना होता है. रिटर्न के अलावा हमें क्या करना होता है, पिक्चर्स को कट करना होता है एंड देन उसे पेस्ट करना होता है. सेम इन रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कट द डिजायर्ड डीएनए विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम व्हिच इज आल्सो नोन एज मॉलिक्यूलर सीजर, एंड वी हैव टू पेस्ट देयर विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज व्हिच एक्ट एज अ ग्लू. बट ये फिर भी पॉसिबल नहीं है विदाउट वेक्टर. वेक्टर इट्स वर्क लाइक अ व्हीकल. जिससे व्हीकल वर्क करता है हमें एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में. सेम इन रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी द वेक्टर एक्ट लाइक अ व्हीकल. आई होप इट्स क्लियर नाउ. बायोटेक्नोलॉजी में जो हम टूल यूज करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, उसके बारे में हम एक बार डिस्कस करते हैं. लेट मी डिस्कस अबाउट द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. The first thing coming in our mind that why it is restriction enzyme. इसके नेम का सिग्निफिकेंस क्या है? तो रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है मॉलिक्यूलर सीजर, मैंने अभी आपको बताया. वी कैन ऑल्सो कॉल मॉलिक्यूलर सीजर्स. रिस्ट्रिक्शन मीन्स इट रिस्ट्रिक्ट द ग्रोथ. बट किसके? वो हम देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये हमने दिया इकोलाई. इकोलाई का खुद का डीएनए है. यहाँ पे बैक्टीरियोफाज है. बैक्टीरियोफाज इंसर्ट देयर जीन इनसाइड द होस्ट लाइक इकोलाई. Here the presence of restriction enzyme, ये करना क्या चाहता था? It's want to infect the bacteria or the E. coli. But here the presence of restriction enzyme. और restriction enzyme क्या करेगा? Restrict करेगा growth of DNA or bacteriophage. How? It just fragment the DNA properly. But the question arises in our mind that why it's not fragment their own DNA or the E. coli DNA? Because there is the presence of methyl group here. And the methyl group present here, so it protect from restriction enzyme. और ये इसको recognize नहीं कर पाएगा. It's not work on it. Clear? That's why we call restriction enzyme because it restrict the growth of bacteria. या फिर eco R1 का अगर हम nomenclature देखते हैं तो ये क्या है? E जो है वो हमारा genus है. CO is species. R is strain. And 1 is very important, it is the isolation number. अब इसे याद कैसे करें? इसके लिए हमें कोई ट्रिक बनाना होगा. आपने हायरार्की में देखा होगा, मैं इसको कैसे याद रखती थी, जैसे SG4PK. क्या है ये?
एस से हो गया हमारे स्पीसीज, जी फॉर जीनस, एफ फॉर फैमिली, ओ फॉर ऑर्डर, सी फॉर क्लास, पी फॉर फाइलम एंड के फॉर किंगडम। हमने ये पढ़ा है ना, इसमें हम सीक्वेंस पता करते हैं कि ओके स्पीसीज सबसे छोटा है, देन जीनस है, देन फैमिली है। हियर वी आर यूजिंग जीनस बिफोर दैट स्पीसीज। क्यों? क्योंकि हम ये मैंने बताया कि जीनस जो है वो स्पीसीज से बड़ा है, इसलिए आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए माइंड में। अगर आप एमसीक्यू में देखते हैं ना, उस टाइम पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर? तो ये आप याद रखना कि जी फॉर जीनस एंड एस फॉर स्पीसीज। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को अगर हम डिटेल में पढ़ते हैं तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है उसमें हम क्या देखेंगे कि ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है एक्सो न्यूक्लियस एंड सेकेंड वन इज एंडोन्यूक्लियस। इसमें क्वेश्चन आता है कि न्यूक्लियस क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस क्या करता है, फॉर एग्जांपल आरएनए, जैसे आरएनए को ब्रेक डाउन करता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, सेम न्यूक्लियस क्या करेगा, जैसे न्यूक्लियोटाइड है, फॉर एग्जांपल दिस इज द न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोटाइड, ओके, एंड ये दोनों जो आपस में ज्वाइन है विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, तो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, ये ब्रेक करता है इसके फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को। ठीक है, एक्सोन्यूक्लियस जो है ये हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए में नहीं यूज करते। क्यों? क्योंकि अगर मैंने ये सीक्वेंस देखा तो ये जो एक्सोन्यूक्लियस है ये क्या करता है, ये टर्मिनल से कट करता है, बट एंडोन्यूक्लियस इज कट फ्रॉम द स्पेसिफिक साइट। फॉर एग्जांपल अगर मुझे इसको यहां से कट करना है तो ये यहीं से कट करेगा, इसके लिए ये वेस्ट नहीं करेगा डीएनए को। ठीक है, तो ये हम वी कैन यूज एंडोन्यूक्लियस, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इन रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी। इसमें भी हम फर्दर पढ़ते हैं एंडोन्यूक्लियस में स्टिकी एंड एंड ब्लंट एंड, इसको हम डिटेल में देखते हैं। स्टिकी एंड जो होता है इट्स एक्ट लाइक अ ओवरहैंगिंग पोजीशन लाइक दिस, ओके, इट्स लाइक अ ओवरहैंगिंग पोजीशन, जो मैं अभी आपको बना के दिखाती हूँ। ये जो है ये हमारा वेक्टर डीएनए है, दिस इज द वेक्टर डीएनए। और सेम हमारे पास क्या होगा, फॉरेन डीएनए जो डिजायर्ड जिसको हम बोलते हैं ना, वो भी यहां पे प्रेजेंट होगा। ओके, व्हाट वी डू, हम क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वी आर गोइंग टू कट द बोथ स्ट्रैंड इक्वली। ओके, why we cut the same restriction enzyme in both the site like a vector DNA पे भी और foreign DNA पे भी, to make sticky end। ठीक है, ये sticky end बन जाए, ये overhanging position में आ जाए, इसलिए हम इसे क्या करते हैं with the same restriction enzyme cut both vector DNA और foreign DNA। तो इसको हम कट करके दिखाते हैं, अगर ये यहां से कट हो जाएगा तो कैसा दिखेगा। ओके, कट तो हो गया, बट विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज वी आर गोइंग टू जॉइन बोथ वेक्टर डीएनए एंड द फॉरेन डीएनए। आई होप इट्स क्लियर नाउ। ओके, तो ये क्या बना, ये जो है ना ये हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, जिसका जो हमारा टॉपिक है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अगर आप एनसीईआरटी बुक में देखो तो ये यहाँ पे शो किया हुआ है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऐसी फॉर्मेशन होता है एंड फाइनली हमें क्या मिलता है, यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्मेशन मिलता है। ओके, बट हम इसको, ये तो हमने सेगमेंट देखा, सेगमेंट ऑफ जीन में देखा कि कैसे होता है, लेकिन अगर मैं इसे डायरेक्टली आपको दिखाऊं कि कैसे सेगमेंट करते हैं, कैसे उसको हम सेपरेट करते हैं, लेट मी डिस्कस फर्दर। दिस इज आवर सेगमेंट ऑफ डीएनए एंड ये हमारा प्लाज्मिड है। नाउ इट फ्रैगमेंट with the help of restriction endonuclease. But the question arises in our mind, how we identify the significant and the desired DNA जो हमें identify करना है, because all are looking similar. So here we are using gel electrophoresis. What is gel electrophoresis? We are using this technique to separate according to their size. क्योंकि मुझे पता है कि the desired DNA is 200 base pair, but we don't know इनमें से कौन सा. So we are using one technique, gel electrophoresis.
which is very important. Without this, recombinant biotechnology is not possible. This is the jar of recombinant or of gel electrophoresis. What we put inside this? We put agarose. Agarose क्या होता है? Agarose we are isolated from seaweed. It is the algae. It is the solidifying agent. What we do? हम इसमें क्या करेंगे? एगेरोज पोर करेंगे. फर्स्टली वी टेक एज अ पाउडर एंड देन डिसॉल्व इन बॉइल्ड वाटर, एंड जब वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा देन वी पुट इनसाइड द जार. नाउ व्हाट वी पुट हियर? वी पुट डीएनए. अच्छा, ये वेल बना कैसे? व्हेन वी आर सॉलिडिफाइंग द अगार देन वी पुट कॉम्ब ऑल्सो. उसी टाइम पे आपको कॉम्ब लगा देना है. व्हेन इट सॉलिडिफाई जस्ट रिमूव द कॉम्ब, इट फॉर्म वेल. ओके, लेकिन एक चीज याद रखना कि जैसे वन जो है ना उसमें हम लैडर डालते हैं. व्हाट इज लैडर? लैडर जिसका हमें ऑलरेडी सीक्वेंस नोन हो, और उसके बाद हम अपने डीएनए जो सेपरेट डीएनए जो था उसको यहाँ पे डाल देंगे. यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे एक अट्रैक्शन होता है. ये पॉजिटिव है और डीएनए हमारा क्या है? नेगेटिव चार्ज. व्हेन इट मूव टुवर्ड द एनोड, टुवर्ड द पॉजिटिव साइड, फिर हमें क्या दिखेगा कि जो जितना छोटा फ्रेगमेंट है वो उतनी फास्टली मूव करेगा. ओके, स्मॉलर द फ्रेगमेंट फास्टर द मूवमेंट. ठीक है, अब देखना जितना छोटा फ्रेगमेंट उतना उसका फास्ट होगा मूवमेंट. तो ये यहाँ पे हमें देखने को मिलता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप रेस में याद करो, जो छोटा बच्चा होता है ना, फॉर एग्जाम्पल सोचो कि कोई भीड़ में जा रहा है, ठीक है, और जो छोटी गाड़ी होती है, फॉर एग्जाम्पल साइकिल है, तो साइकिल बहुत इजीली निकल जाता है, लेकिन वहीं पे जो हमारी बड़ी बड़ी गाड़ी होती है ना वो फंस जाती है. सेम इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, द बिगर फ्रेगमेंट यहीं पे रह जाएगा, लेकिन द स्मॉलर फ्रेगमेंट फास्टर द मूवमेंट. क्लियर? तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे. व्हेन वी आइडेंटिफाई, हम क्या करेंगे? उससे पीसीआर करवा देंगे. पीसीआर क्या होता है? वेयर वी एम्पलीफाई. जब हम उसे एम्पलीफाई कर देंगे डीएनए को, एट दैट टाइम व्हाट वी गेट द डिजायर्ड जीन. उसके बाद हमें क्या करना है? इसमें भी कट लगवाना है. इसमें भी हम सेम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डन करेंगे. ये फ्रेगमेंट जो है इसे रिमूव करके विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज वी आर गोइंग टू इंसर्ट the desired DNA into the vector and it get completed. Let me show to other pen, otherwise you get confusion. Here is the desired DNA. Okay, this is the color of desired DNA. Clear? Now हमें करना क्या है? क्या यही तक प्रोसेस था? क्या recombinant DNA तो बन गया, but we have to replicate it inside the host. What we are using it as a host? We are using E. coli. इकोलाई में ये हम जो वेक्टर था ये जाएगा एंड देन इट गेट रेप्लिकेटेड. दिस प्रोसेस जो है ये पूरा क्या है? हमारा रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी. एक बार हम बुक में देखते हैं. मैं ये चीज बता रही थी कि अगर ये वेक्टर जो है जब ये इसमें बैक्टीरिया में जाएगा उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन. ट्रांसफॉर्मेशन ये मेथड है. नाउ जो मेन थिंग था, जो टूल ऑफ रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी में आपको नहीं भूलना है, द फर्स्ट थिंग we have to remember all the tools like restriction enzyme act as a molecular seizure, DNA ligase act as a glue, and vector act like a vehicle. Now एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे हम वेक्टर देखते हैं, वेक्टर में हमने क्या देखा है? PBr322. इसमें हम क्या देखते हैं? यहाँ पे एम्पिसिलिन होता है और यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन होता है. बच्चे को बहुत कंफ्यूजन होता है कि ये हम याद कैसे करें. तो इसको याद करने का एक तरीका है एरोटा. हमने एरोटा पढ़ा है अपने हर्ट में, तो आप इसे रिमेंबर कर सकते हो. ए से एम्पिसिलिन, ओ से ORI, R से ROP, T से टेट्रासाइक्लिन एंड E से अगेन इट्स रिपीटेड. I hope it's clear. This is all for today's class. We will discuss next the process of recombinant biotechnology in next class. Thank you very much.